السلام وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون واستغفر بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إلى المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرابا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عند الجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کا سب شکر احسان کہ ہمیں دوبارہ عید الاضحیٰ کی اس مجمع میں حاضر ہونے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کا ہمیں شرف بخشا اور آپ کو اور ہم سب کو مل کر ایک عظیم اس یوم کی یاد میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یا ان کی یاد میں ایک دن ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہ عظیم دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کی دربار میں اپنی آخری قربانی پیش کی تھی۔ یوں تو ان کی زندگی پوری قربانیوں سے ہی عبارت ہے۔ وہ کون سا مرحلہ زندگی کا آپ کا ہے کہ جہاں پر آپ کو آزمائشیں نہ ہوئی؟ آپ کے بچپن سے ہی، بچپن میں، اس کے بعد پھر جب آپ بالغ ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، اس وقت سے ہی آپ کی قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے والد اور ان کے بتوں کی عاجزی اور ان کی بے اعتنائی یا ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں، بلکہ یہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ توحید کا جب سبق دیا ہے، توحید کے سبق دینے کے بعد ان کو پھر اپنے جو علاقے کے لوگ تھے، اپنے والدین تھے، ان کی مخالفت جھیلنی پڑی، یہاں تک کہ انہیں ایک آگ کے علاوہ میں ڈالنا پڑا، کیونکہ انہوں نے توہین کر دی تھی۔ سبق وہ دینا چاہتے تھے کہ ان میں کچھ نہیں، یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی اسی کے پاس تمام طاقتیں ہیں، باقی یہ تمہارے سب اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئی چیزیں ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ ان کے اندر اگر طاقت ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ ہی کو بچا لیتے۔ جس وقت عید کا دن تھا، سب لوگوں نے کہا ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نظر پر پھر نجوم پا لینی سکین کی ستاروں کی طرف دیکھا، کیونکہ ان لوگوں کا اعتقاد تھا ستاروں پر، کیا میں بیمار ہوں کہ جس چیز کی طرف تم لے جانا چاہتے ہو وہ میرے عقیدے کے خلاف ہے، لہٰذا میری صحت اس میں نہیں بن سکتی ہے، میری صحت اللہ تعالیٰ کی توحید میں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کرنے میں ہے۔ اس لیے جب وہ نکل چلے تو ان کو ایک سبق دیا گیا، ان کو ایک سبق دیا۔ سبق یوں دیا کہ ان کو بت خانے میں جا کر بت خانے کا جو توڑ پھوڑ کرنے کے بعد ایک بڑے بت کے گلے میں جو کلاڑی لٹکا دی، وہ آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ ایک شخص ہے سمعنا فتى يقال له ابراہیم یذکرہم، کہ جو ان کا ذکر کرتا تھا، جن کو یہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بلایا گیا، بلانے کے بعد کہا نہیں، ان سے پوچھ لو، کیونکہ ان کے ہی بڑے نے ایسا کام کیا کہ اس کے بعد ثبوت بھی ہے، ان کے گلے میں جو ہے ان کا ثبوت ہے، ہتھیار بھی ہے جس کے ذریعے سے توڑ پھوڑ کی گئی ہے، لہٰذا ان سے پوچھو، خود ہی بتائیں گے۔ تو ان کو یہی کہلوانا تھا ان کے منہ سے۔ کہا کہ آپ معلوم ہے کہ یہ بولتے کا ہے؟ کہا کہ جب بولتے نہیں ہے تو پھر کس لیے؟ جب وہ اپنی گفتہ نہیں بتا سکتے ہیں، اپنے اندر گزرا ہوا جو بھی سلسلہ ہے اس کو نہیں، اس کا اظہار نہیں کر سکتے، تو پھر یہ تمہاری فریاد کیسے سن سکتے؟ تو اس کی سزا جو ہے مقرر ہوئی تھی کہ ان کو ایک بہت بڑے آگ کے علاوہ میں ڈال دیا گیا تاکہ نہ رہے باس اور نہ بچے بانسری۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مرحلے سے بھی گزر گئے، مرحلہ حیات سے، کہ اپنے آپ کا ذرا سنیے، یہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت ڈالا گیا آگ میں، دور سے پھینکا گیا، تو پھر وہاں پر ایسا ہوا کہ تمام لوگوں نے تالیاں بجائی اور یہ سوچا کہ اب یہ جا کر جو ہے
ये जल जाएंगे, आग में क्या रह जाएगा। लेकिन वहाँ अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उनका ईमान था, तो नतीजा ये निकला कि वो आग जो है गुलजार में तब्दील हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना रकूनी बर्तन व सलामा, कि आग तो ठंडी हो जा, और ऐसी ठंडी नहीं कि जमहरीर में तब्दील हो जाए, बल्कि सलामा, यानी ऐसी ठंडक पैदा कर देगी जिसमें बाइस सलाम की हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस आते हैं शादार फरहा, उसके बाद फिर उस इलाके को छोड़ देते हैं। अपने इलाके से हिजरत करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ भी तकरीबन जितने भी लोग हैं उनमें से उन लोगों को हिजरत का जो थोड़ा सा सबक याद होगा उस जमाने का, जिस जमाने में वो आए थे। तो ये हिजरत जो थी ये खुशी खुशी आपने की, क्योंकि जमीन के लिए यहाँ पर देखा कि वहाँ पर जमीनें तंग थी, रोजी रोटी के सिलसिले में यहाँ हिजरत हुई। लेकिन उन्होंने हिजरत जो की थी वो हिजरत इसलिए नहीं की थी, बल्कि इसलिए की थी ताकि अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करें और अल्लाह ताला की तौहीद का प्रचार करें, क्योंकि वो कौम जो है इस बात के लायक नहीं थी। उन्होंने उनके अंदर जो सलाहियतें थी वो सबकी सब हो गई थी, और उनके अंदर जो है वो तागूती असर इतना पड़ गया था कि अल्लाह ताला की तौहीद के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसलिए वहां से निकलते हैं वो अपनी बीवी को लेकर और अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को लेकर वहां से निकलते हैं। निकलने के बाद शुदा उनकी उम्र जो 86 बरस की हो गई थी, मुझे याद कीजिए 86 बरस तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह के नबी है, खलील है, वो अल्लाह से मांग सकते थे, एक छोड़कर 10 औलादें मांग सकते थे, लेकिन उस वक्त तक अल्लाह ताला से मांगी दुआ की, लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं की गई, उनकी दुआ कबूल नहीं की। और जो लोग लोगों से मांगते हैं, कब्रों से आस्थानों से मांगते हैं, उनको औलाद के सिलसिले में उनको बताते हैं तो ये भी खुद कर सकते थे, क्योंकि ये खुद साहिब आस्थान थे। लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हम अल्लाह ताला जो है जिसको चाहता है तो लड़के ही देता है, जिसको चाहता है लड़कियां देता है, जिसको चाहता है दोनों देता है, जिसको चाहता है बांध के रखता है 86 बरस तक। उसके बाद जब दुआ हमने की महाजरत में, हिजरत जब की तो महाजरत में जब दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनको गुलाम हलीम कि अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी उनको गुलाम हलीम की, गुलाम हलीम की जब बशारत दे दी तो वो गुलाम हलीम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उनको जब उनकी बशारत दे दी, जब वो चलने फिरने के काबिल हो गए तो ये एक जो बशारत उनकी थी उनको गुलाम हलीम की जब बशारत दी और वो चलने फिरने के काबिल हो गए। लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पर एक घर में एक मसला और पैदा हो गया। हजरत सारा अलैहिस्सलाम उनको गैरत हुई और उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया कि दूसरी जो बीवी इनकी है और इनसे बच्चा पैदा हो, ये कैसे हो सकता है, इसलिए वो उसकी ऊपर तन गई। नतीजा ये निकला कि उनको वहां से ले जाकर मक्का की गैरजी दरा वादी के अंदर एक संगलाफ मैदान के अंदर एक चक्ल बयाबान के अंदर जो है उनको वहां ले जाना पड़ा और वहां अल्लाह ताला के हुक्म से उनको बसाना पड़ा। वहां न पानी था जो सबसे बड़ी चीज है, और न वहां कोई ऐसी चीज थी कि जिससे इंसान का जो वो पेट या ऐसी नबातात की जिसके जरिए से अपने पेट को पालती हो। वहां जब छोड़ दिया, छोड़ने के बाद अब जरा देखिए कैसी अदा है कि जब वो जाने लगे वहां कुछ थोड़े से खजूर थे और कुछ पानी था छागल में, ये सब चीजें देने के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से जाने लगे तो कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने बीवी ने पूछा, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो हमें छोड़कर, यहाँ किसके हवाले करके, तो कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद कहा क्या अल्लाह ताला का हुक्म है? कहा कि तब हमें कोई परवाह नहीं है, अल्लाह ताला जो है हमें जाया नहीं करेगा। तो उसके बाद जो है वो सिलसिला शुरू हो, यहाँ तक कि उसी पे आ गया वादी में जिसमें बच्चा छोटा सा दूध पीता बच्चा का पानी जब इनके मशकीजे में खत्म हो गया, खाने के लिए खजूरें थी वो भी खत्म हो गई। खत्म होने के बाद बच्चा तड़पने लगा क्योंकि दूध ही छाती में नहीं था, इसलिए जब वो तड़पने लगा तो वो हजरत हाजरा जो है, आज वो जगह जहाँ सफा और मरवा कहलाते हैं, ये 2 पहाड़ियां थी उस वक्त और ये सब की सब मस्जिद के अंदर आ गई है। तो उस पहाड़ी में सफा पे गई, ऊंची पहाड़ी पर, छोटी पहाड़ी पर, ताकि वहां से दूर किसी को देखे कोई आता जाता, कोई काफिला जिसके पास पानी हो। तो वहां जब गई, वहां से दौड़कर फिर आ गई नीचे नशीबी जगह जहाँ मिलेन अक्सर वो हाजी हजरात को मालूम है, उस जगह से सीधा ही वो जगह नजर आती थी जहाँ पर हजरत इस्माइल को लटाया गया था। जब वहां नजर डालती वहां से फिर मरवा की तरफ चली जाती, मरवा से फिर आती, इसी तरह से आते जाते उनको 7 चक्कर बराबर हो गए।
इतने देता था तब तक तो बच्चा बिलबिला रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। लेकिन जिस वक्त जब लास्ट में 7 चक्कर पूरे हो गए तो वहां पर जब पहुंचा तो वो बच्चा खामोश था। तो उनका माथा ठिंका और कहा कि हो सकता है कि बच्चा जो है जाने आखिरी के सुपुर्द कर चुका होगा। इसलिए वहां जाती है तो वहां अजीब सूरत हालत, अजीब मंजर देखती है कि वहां पानी जो है उबल रहा है इसी जमीन से। आपको मालूम होना चाहिए कि वो सरजमीन जो मक्का की वादी है, ये वादी किसी जमाने में आतिशफिशा पहाड़ से बनी हुई है। आतिशफिशा चट्टानें जो होती है उसमें कोई भी दरार नहीं होती बीच में, ताकि उसके जरिए से कोई पानी का रीला या पानी का जो है कोई उसमें से गुंजाइश हो बहने की। लेकिन वो वहां पर बिल्कुल चट्टान में उसमें पानी था ही नहीं, पानी का वजूद ही नहीं था। लेकिन हज़रत जिब्रील आते हैं, उसने अपने पर से जब मारा उसी वादी के दरमियान में जहां पर वो बच्चा था, तो वहां से नतीजा ये निकला कि वो जितनी भी चट्टानें थी वो आतिशफशानी चट्टानें, उन चट्टानों में गाड़ी आ गई। और उस वक्त ये मालूम हुआ जिस वक्त मक्का के बाहर जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों को जब काटा गया, सुरंगें बनाई गई, तो वहां पर मालूम हुआ कि वहां कुछ गाड़े उसको दिखाई गई। और वो चश्मा इतना यानी वो उबलता हुआ चश्मा है नीचे से, और उसको उस चश्मे में वो कहीं भी कोई शॉट नहीं, कोई भी कहीं से गुंजाइश नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर ही से ऐसा जरिया बना लिया है कि आज भी करोड़ों लोग जो है उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। हरमैन के अलावा जो है मक्का की इसकी अरब की जितनी मसाजिद में सप्लाई होता है, लेकिन वो पानी का चश्मा खत्म नहीं होता। बहुत बड़ा चश्मा जिसको दिखाते हैं वो, तो वो चश्मा जो है वो उबल गया। और वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत हाजरा जो है वो जल्दी वो रेत जो है जमा करने लगी, तालाब बनाने लगी। और फिर उसके बाद जमजम का लफ्ज इस्तेमाल किया था, रुक जा। और यही नाम जो है उसका मशहूर हो गया जमजम का। और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर वो उसको बंद नहीं करते पानी को तो आज तक वो जारी चश्मा होता, बहता उबलता होता। लेकिन चूंकि उन्हें उसके चारों तरफ से घेर दिया था, उसको तालाब की शक्ल दे दी थी, इसलिए वो पानी जो है पानी उतना ही रहा बराबर। और ये अल्लाह ताला ने उनका जो है इंतजाम कर दिया। इंतजाम करने के बाद फिर जिस वक्त वो बच्चा आस्ता बढ़ा, वो जगह जो है आस्ता बढ़ा, वहां पर कुछ कबीले आए। और जिरहम का कबीला था, वो कहीं से सफर करता हुआ आ रहा था। और सफर करते हुए उसने देखा कि वहां पर कुछ परिंदे हैं, और वो परिंदे की जो पानी के ऊपर ही मुड़लाते हैं। उन्हें जब देखा कि वो परिंदा जो है मुड़ला रहा है फजा में, तो कहा कि हो ना हो यहाँ पर पानी हो। जब आए नजदीक देखते हैं कि वहाँ एक चश्मा जारी है। वहां पर देखा एक दरख्त के नीचे एक औरत है बैठी और एक बच्चा उसकी गोद में है। और उन्हें कहा कि यहाँ पर हमें रहने की इजाजत दे दीजिए। जब उनकी इजाजत से वो बसने लगे तो जिरहम का कबीला भी आस्ता बढ़ने लगा, आबादी होने लगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बराबर 1 साल के बाद, 1 साल या 6 महीने के बाद जो नजर गुजर करने के लिए आया करते थे। तो एक बार जब आए, जैसा बच्चा जो है जवान हो गया था, जवान ये चलने फिरने के लायक हो गया था, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब में अल्लाह ताला ने बताया है कि मैं तुम्हें ज़बह करता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। इनमें आरा फिल्माना में हमने अब्बू को फल करना दो तरह काली आबत्ती फरमा तो मैं सच्ची इंशाअल्लाह साबरी कि अब्बा जान जो कुछ आपको हुक्म दिया गया है उस हुक्म के मुताबिक आप मुझे ज़बह कर दो, मैं सब्र करने वाला होऊंगा। और जिस वक्त उनको ले गए, जब उनकी बीवी अपने हाजरा से पूछा ना हाजरा से पूछा नहीं बल्कि निकल गए वो उनके नए कपड़े पहनाकर नहा धोलाकर वहां से मिना की तरफ कि मिना, और वहां से जो है तकरीबन 3 मील की दूरी पर मिना है। और 3 मील की तरफ जो जाने लगे तो पीछे से आकर इब्लीस शैतान आया और उसने कहा हजरत हाजरा को, कहा कि जानते हो ये तुम्हारे जो सरताज हैं बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हैं। कहा कि जा रहे हैं, अपना बाप है, उनकी मर्जी है, जहाँ ले जाएंगे। कहा नहीं, ये दावत खाने के लिए ले जा रहे हैं बल्कि इसको ज़बह करने के लिए जा रहे हैं। कहा कि अच्छा ज़बह करने के लिए जा रहे हैं तो तुम तो शैतान मरदूद हो। अगर ज़बह करने का हुक्म ही अल्लाह ने दिया होगा तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़बह भी कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान को अल्लाह ताला के हुक्म द्वारा उसकी ताबेदारी में अपने आप को पेश करना तो बड़ी बात नहीं है। इसलिए वहां से निकले, फिर इस्माइल से कहा तुम्हें जानते हो कि कहाँ ले जा रहे हैं। तो उसने कहा जा तो शैतान मरदूद है। यहाँ तक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 3 जगहों पर रुकावट डाली है। उनको जमरात कहा जाता है, जहाँ पर वो आज भी जाकर 3 जगह बनाई गई है और वो 7 कंकरियां फेंकते हैं, उसी अमल को दोहराते हैं। तो शैतान तीसरी जगह जो है मरदूद हो गया, निकल गया। तो हज़रत इब्राहिम
फलम्मा अस्लम व तल्लहु लिल-जबीन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस वक्त दोनों के दोनों ताबेदार हो गए अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने आप को उन्होंने तैयार कर दिया। व तल्लहु लिल-जबीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जबीन पेशानी के बल जो है लगाया, क्योंकि उन्होंने जब पूछा था उनको सीधा यानी अपने आसमान की तरफ उनके सर करके लेटा रहे थे, लेकिन कहा कि आप ऐसा न कीजिए, हो सकता है कि आपकी नजर जो है वो मेरे चेहरे की तरफ आ जाए तो आप अपने काम करने में अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में आपको रुकावट हो जाए, लिहाजा ऐसा करो कि मुझे टेढ़ा लटाइए और अपने इस आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि कहीं पितरी शफकत आ जाए सामने और आपको अल्लाह ताला की इस कुर्बानी देने में कोई दिक्कत ना आ जाए। इसलिए जब लटाया गया, छुरी तेज की गई और पूरा चलाया गया, और पूरा जब चलाया गया वो नादैन या इब्राहिम कर सकते थे सतत कर रोया कि अल्लाह ताला ने पुकारा इब्राहिम, तो आपको जो ख्वाब आपने देखा था वो ख्वाब पूरा हो गया। और जिस वक्त वो वहां से जाते हैं वो फदैना बिज़िबिहिल अज़ीम, अल्लाह ताला ने एक बड़ा दुम्बा जो है उनकी जगह पर कुर्बानी करने के लिए भेज दिया और इनका इम्तिहान पूरा हो गया। और इनका इम्तिहान पूरा हो गया तो आप खुद अंदाजा कीजिए, उसके बाद इम्तिहान के बाद जो है उन्होंने फिर काबा तामीर किया है। काबा तामीर करने के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है कि जितने भी अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आए सब आप ही की नस्ल से हैं। जितने भी नबी और रसूल आए हैं और जितने भी आसमानी किताबें नाजिल हुई वो किताबें भी आप ही के औलाद में, आप ही के नस्ल में जो अंबिया गुजरे हैं उनको किताबें मिली हैं। और इसके अंदर जो सबक दिया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये सबक दिया गया और सबक के अंदर ये चीज बताई गई कि कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप कह दीजिए इन्ना सलाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना ये सब अल्लाह ही के लिए। मुसलमानों को भी ये सबक दिया गया है। उसकी जगह पर उसकी सुन्नत में लाखों करोड़ों जानवरों को आज के दिन ज़बह किया जाता है दुनिया भर में। दुनिया भर के अंदर जितने भी मुसलमान हैं सब यही इसी को अपने को इस अमल को अपनाते हैं, मगर उसके सामने उसकी असली याद यह है कि अल्लाह ताला के लिए, क्योंकि उसने ही इंसानों को पैदा किया है। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, जिंदगी और मौत दी है। जिंदगी और मौत इसलिए दी है ताकि उनकी आजमाइश हो। इंसान की असली जिंदगी यहाँ नहीं है, असली जिंदगी जो मरने के बाद है, क्योंकि यह जिंदगी कई मराहिल में तकसीम कर दी गई है। एक मरहला मौजूदा मरहला है, उससे पहले एक मरहला जिसको शिक्र मादर के अंदर, दूसरा मरहला ये है, तीसरा मरहला बरज़ख है और चौथा मरहला जो आखिरत का है कि जहां पर इंसानों का हिसाब किताब होगा। इसलिए इंसानों को ये बताया गया कि अल्लाह ताला की बंदगी करो, अल्लाह ताला की इबादत करो। या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ वो लोगो, या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, तुम इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुम्हें पैदा कर, तुमसे पहले जितने लोगों को पैदा किया है। और फिर इसमें फिर 5 सिफात बताई गई है। अल्लाह कि अल्लाह ताला ने जमीन को जो फर्श बनाया, आसमान को छत बना और फिर इसमें आसमान से बारिश नाजिल की, जमीन से अनाज उगाया किस्म किस्म की, जिससे तुम्हारे चौपाइयों का सामान गुजारा जो है पूरा हो जाता है। ये 5 सिफात अल्लाह ताला के अलावा किसी में भी नहीं पाई जाती है। पैदा करना सिर्फ अल्लाह का काम है, क्योंकि मक्का वालों से, अरब वालों से जब पूछा जाता था कि तुमको किसने पैदा किया, वो जवाब में कहते थे कि अल्लाह ने पैदा किया है। जब उनसे पूछा जाता था कि ये रोटी तुम्हें कौन देता है, कहा अल्लाह ने। मारता कौन है, तुम्हें अल्लाह मारता है। जब ये सब चीजें जो है सिफत उसके अंदर पाई जाती है, लिहाजा वही जात है कि जिसकी इबादत की जाएगी, जिसकी बंदगी की जाएगी, जिसके सामने अपने सारे तस्लीम को खम किया जाएगा, इसके अलावा और कोई इबादत के काबिल नहीं है। यही सबक मुसलमानों का है। और मुसलमान आज हम अपने हाथ से कुर्बानी करते हैं, लेकिन ये चीज याद रखें कि अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए हमें पैदा किया है कि अब अल्लाह ताला के हुकूक जो है वो क्या हम पर हैं आयद है, और बंदों के हुकूक हमारे दरमियान में क्या है कि हमें किस तरह से जिम्मेदारियों में घेर दिया गया है। एक जिम्मेदाराना हैसियत से, जिम्मेदाराना मखलूक की हैसियत से हमें इस दुनिया के अंदर लाया है। लिहाजा उन जिम्मेदारियों को हम पूरा करते रहे, चाहे इस सिलसिले में हमें किसी हद तक कुर्बानी की हद तक भी क्यों न जाना पड़े। यही इसका जो है आप 2.5 महीने के बाद जो है वो एक दूसरी इबादत, इससे पहले 2.5 माह पहले जो है एक इबादत जिसको रमजान मुबारक कहा जाता है, उसके अंदर भी
वो चीजें कि इंसानों के ऊपर जायज और हलाल थी, लेकिन वो भी वक्ती तरीके से तुम्हें शहर से लेकर तुम्हें गुरूब आफ्ताब तक के दरमियान का जो वक्त था उसमें भी खाना भी जो जायज उसके लिए था, पानी उनके लिए जायज था, इसी तरह से दूसरी चीजें उसके लिए जायज थी, लेकिन वो भी अपने ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया माज इसलिए ताकि 1 महीने की बराबर मुसलसल ये प्रैक्टिस की जाए। तो इस बात को जाना जाए कि अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला की बंदगी, अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया उस मकसद को सामने रखे। और आज इसमें जो ये ईद उल अजहा का दिन है, ईद उल अजहा ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा रुकन है और इस्लाम का ये इस्लामी कैलेंडर का ये 12वां महीना है और 12वें महीने में 10 तारीख है, 10 तारीख। और फिर इसमें जो फजीलत आई है कुरान मजीद में लिखा वल फज्र वल यौम अश्र की कसम है वल फज्र कसम फजर की और 10 रातों की, 10 रातों से मुराद यही जिलहज्जा की 10 तारीखें हैं। इसमें बहुत बड़ा सवाब है। इसमें जो हज के अंदर शामिल है उनके लिए नहीं, अलबत्ता जो घरों में मौजूद हैं उनके लिए इन 10 तारीखों में रोजा रखना जो है वो रोजा रखना इसकी बहुत बड़ा सवाब है। यहाँ तक कि इस अरफात के रोजे के हवाले से बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ख्याल ये है कि इसमें 1 साल कबल के गुनाह माफ हो जाते हैं और 1 साल बाद के गुनाह माफ हो जाते हैं। जो 1 दिन का रोजा रखता है 9 जिलहिज्जा का, 9 जिलहिज्जा का रोजा, और 9 जिलहिज्जा अरब की कैलेंडर के लिहाज से नहीं है, जहां आप हैं वहां की कैलेंडर के लिहाज से, लिहाजा कल का जो रोजा था वो बराबर 1 साल का गुनाह सगीरा माफ हो जाते हैं और 1 साल बाद के गुनाह। और आपको पता है जितनी भी इबादत हैं, इबादत के अंदर हर एक की खासियत है, वुज़ू करने में भी खासियत है कि उससे भी गुनाह कितने झड़ते हैं। यहाँ तक एक नमाज के बाद दूसरी नमाज, एक हफ्ते में एक जुमा के बाद दूसरी जुमा, एक रमजान के बाद दूसरे रमजान तक के जितने बीच में गुनाह है वो सब के सब माफ हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें तो बताया गया कि अरफात का रोजा जो है, अरफात के रोजे का यह फायदा है, जरा सोचिए, गौर कीजिए, गौर के करने का मकाम है। इसमें हमें ईद जो है वो इसलिए नहीं है कि इंसान जो नया नया लिबास पहने, अच्छा अच्छा खाना खाए, बल्कि ईद उस शख्स के लिए ये भी इस्तेमाल करें, जायज है, लेकिन असली जो मकसद है, असल मकसद ये है कि इंसान जो है अल्लाह ताला से डरे और अल्लाह ताला के सामने जवाबदही का उसके सामने जो है वो तसव्वुर उभरे और वो तैयार हो अपने आप को जवाब देने के लिए कि हम कब्र में जब जाएंगे पहली मंजिल होगी तो उसमें हम कैसे जवाब देंगे अल्लाह ताला का, और आखिरत में जिस वक्त खड़े होंगे और जहाँ कोई किसी के कोई काम नहीं आ गया, यौम यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह, उस वक्त की जवाबदही के लिए जब वो तैयारी करेगा ये दुनिया में करना है और दुनिया के अंदर दुनिया का सिलसिला जो गुजरता जाएगा, ये कारवां चलता रहेगा, फिर लोग आते रहेंगे, ये आने जाने का यातायात का सिलसिला जो है जारी रहेगा और नए नए चेहरे, नए नए लोग जो आएंगे और हम और आप नहीं होंगे। इसलिए हमें जरूरत इस बात की कि हम सोचें अपनी जिंदगी को, जो वक्त हमारे लिए मिला है, जो फुर्सत हमें मिली है, इसको गनीमत जाने और अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए जिम्मेदारी रखी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे ऊपर फराइज आयद किए हैं हुकूकुल्लाह के हवाले से या हुकूकुल इबाद के हवाले से, हुकूक नफ्स के हवाले से, हम उनको पूरा करें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह यअमुरु इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वअदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अला व अला तमु अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين واجعلنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے اعمال کو تو قبول فرما. یا اللہ ہماری عید کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے عبادتوں کو تو قبول فرما. یا اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دیتے. یا اللہ جتنے بھی لوگ مصیبت میں ان کی مصیبت کو دور کر دے. یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو تو ٹھیک کر دے. یا اللہ جتنے بھی ہسپتالوں کے اندر ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما. یا اللہ جب تک ہم دنیا میں رہے ہم تیری عبادت کریں اور تیرے قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں. یا اللہ تیری حکم کے مطابق ہم دنیا میں رہیں. جب دنیا سے جائیں تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے جائیں.